Hello students, मैं BL Sharma, Mathso. In this video, I'm going to discuss with you the basic proportionality theorem is BPT, which is also known as Thales theorem and converse of BPT, that is of class 10th mathematics, chapter 6, triangles. मैं BL Sharma मैथ सर हूँ. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्लास 10 चैप्टर 6 ट्राइंगल से मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा. Keep watching. This is Thales theorem here, THALES theorem. It is also known as basic proportionality theorem. In short, you can say BPT, basic proportionality theorem. And it is very important because it was there, it is there for the last 15-20 years in the board examination, in each paper. So, the statement of this theorem is, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, intersecting the other two sides in distinct, means different points, then the other two sides are divided in the same ratio. We can visualize it as late. ABC is a triangle. What is given? In triangle ABC, in which point P and Q, this point is P, this point is Q, and this is triangle ABC. ये दोनों पॉइंट कैसे हैं? Say P and Q lies on AB and AC respectively such that PQ is parallel to BC. See here, a line is drawn parallel to one side of triangle, intersecting the other two sides in distinct points. See, PQ is a line which is parallel to BC. This PQ intersect AB at P and AC at Q, it is given, means PQ is parallel to BC, it is given. ये हमको given है. प्रूव क्या करना है? We have to prove that this parallel line divide the remaining two sides, means AB and AC in the same ratio. Means we have to prove AP upon PB is equal to AQ upon QC. ये PQ लाइन जो BC के पैरेलल है, AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है. We have to prove it. To prove this theorem, we need some construction. What construction? See here. Construction. First, draw PM perpendicular to AC. This point is P and this point is AC, means draw perpendicular PM to the side AC. ये एंगल 90 डिग्री का है. ये इसलिए हम कर रहे हैं because to find out the area of a triangle we need half into base into altitude. तो ये PM हम altitude के लिए ड्रॉ कर रहे हैं. कंस्ट्रक्शन नंबर 2, ड्रॉ QN परपेंडिकुलर टू AB. ये Q पॉइंट है और ये देखिए UQN एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन AB. मींस P से हमें AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज PM. फिर Q से हमें AC पे AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज AB. एंड join point B with point Q. This point is B. You join with this point Q. And
join point C with point P. This point is C, this point is P. You join it, right? First diagram, then to prove, then construction, and then proof. See, area of triangle APQ upon area of triangle PBQ. APQ, this triangle, upon PBQ, this triangle. इन दोनों ट्राइंगल का हमें रेशियो लेना है, एरिया का रेशियो लेना है. दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QCP. Same area of triangle APQ is same, and area of triangle QCP means this. QCP. देखना यह है कि ये आपस में इक्वल क्यों हुए. सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ बिकॉज ये दोनों सेम ही ट्राइंगल हैं. दो कोई ट्राइंगल सेम होंगे, उनका एरिया भी इक्वल होगा. लेकिन how can you say that area of triangle PBQ is equal to area of triangle QCP? इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल क्यों है. से area of triangle APBQ is equal to area of triangle QCP as they lie on the same base PQ and between same parallel lines PQ and BC. देखिए, ये जो ट्राइंगल है PBQ, P B एंड, फिर से देखिए P B Q, इसका एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल QCP के इक्वल है. QCP, सी अगेन, एरिया ऑफ ट्राइंगल QCP क्यों इक्वल है? बिकॉज देयर वाज अ थ्योरम इन 9th क्लास that triangles lying on the same base and between same parallels are equal in area. 9th क्लास का थ्योरम था ये. तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल में देखिए, ये PQ दोनों का बेस है. कौन से ट्राइंगल का? PBQ. और ट्राइंगल QCP, ये दोनों का बेस सेम है दोनों ट्राइंगल में. PBQ में और QCP में सेम बेस है. और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं. कौन से? PQ एंड BC. देखिए ये इन दोनों का, ये जो वर्टेक्स देखिए, ये B है और ये भी C है, लेकिन ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं. इट वाज अ थ्योरम इन 9th क्लास दैट द ट्राइंगल्स lying on the same base and between same parallels are equal in area. That is why we can say area of triangle PBQ is equal to area of triangle QCP. Area of triangle APQ is equal to area of triangle APQ क्योंकि these two are same triangles, that is why their area is same. अब बात यह है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं. सी, फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ से हमें एक बार में ये बेस लेना AP. अगर मैं ये बेस लूंगा तो मेरे लिए ये अल्टीट्यूड होगा. हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, दैट इज गिवन द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल. सो दैट इज व्हाई एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ देखिए रहा, APQ, इसमें हमने बेस हाफ इंटू बेस AP है और अल्टीट्यूड QN है. फिर से देखिए, बेस इज AP and altitude is QN for this area of triangle AP upon for area of triangle PB की. देखिए बेस ये रहा PB, altitude QN है. देखिए, what is an altitude of a triangle?
मीन्स अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड। ये ट्राइंगल हमारा पी बी क्यू है, ये इसका वर्टेक्स है, ये अपोजिट साइड बी पी है। इसको एक्सटेंड करिए तो ये इसका क्यू एन इसका परपेंडिकुलर होगा, मीन्स हाफ इंटू बेस पी बी इंटू ऑल्टीट्यूड क्यू एन। ध्यान रखिएगा ये भी ऑल्टीट्यूड क्यू एन है ट्राइंगल ए पी क्यू का, और ट्राइंगल पी बी क्यू का भी ऑल्टीट्यूड क्यू एन है। सिमिलरली दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। अब हमें ए पी क्यू में बेस ये लेना है ए क्यू। अगर हम बेस ए क्यू लेंगे देन पी एम विल बी ऑल्टीट्यूड, सो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूसीपी। क्यूसीपी में हमें बेस लेना है क्यूसी। ये अगर ये बेस ये लेंगे तो देखिए इसका अपोजिट वर्टेक्स ये है। इस वर्टेक्स से क्यूसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आउटसाइड जाएगा, ये है पीएम। सो हाफ इंटू क्यूसी इंटू पीएम। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फिर से देखिए, ये इन दोनों ट्राइंगल्स का ऑल्टीट्यूड सेम है, क्यू एन क्यू एन। इन दोनों ट्राइंगल ए पी क्यू और क्यू सी पी का भी ऑल्टीट्यूड सेम है, पी एम और पी एम। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। समझने की बात यह है कि हमने बेस कौन सा, देखिए ये प्रूव करना है एपी, ये बेस हमने एपी लिया है। देन पीबी, ये हमने बेस पीबी लिया है। सी राइट हैंड साइड ए क्यू, ये हमने बेस ए क्यू लिया है। और ये क्यू सी, हमने बेस क्यू सी लिया है। बट नाउ हाफ इज कैंसल बाय हाफ, this qn is cancelled by qn, half is cancelled by half, this pm is cancelled by pm. So see, half is cancelled by this half, this side, this half is cancelled by this half, this qn is cancelled by this qn, this pm is cancelled by this pm. What is left? ap upon pb is equal to aq upon qc. AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। क्या यही प्रूव करना? देखिए रहा, AP टू प्रूव AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो हैव वी प्रूव्ड? क्या हम प्रूव कर चुके? यस, यू कैन राइट हैंस प्रूव। So that's all about basic proportionality theorem. In short, we can say BPT theorem. And other name of this theorem is Thales theorem. Thales was a mathematician. In the name of Thales, the name of this theorem is Thales theorem. You can take a screenshot of it. Now we move on to the next theorem, that is converse of basic proportionality theorem. इसका आपको स्टेटमेंट लर्न करना चाहिए, because sometimes in exam it comes state and prove basic proportionality theorem. स्टेटमेंट भी आप ही को लिखना है, प्रूव भी आपको करना है। So statement is not given. That is why you should practice of the statement of this theorem. That's all for this theorem. Take a screenshot of it. This is second theorem, that is converse of basic proportionality theorem. जो हमने बीपीटी पढ़ा था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी पढ़ा था, उसका कन्वर्स है, उसका उल्टा है। एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम? According to this theorem, if a line divide any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. This is the statement of the converse of basic proportionality theorem. हम इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं।
देखिए ये ट्राइंगल है, क्या गिवन है इसमें? व्हाट इज गिवन in this given that let line DE intersect two sides of triangle, which triangle? AB and AC of triangle ABC at D and E. ये एक लाइन है, D और E पे इंटरसेक्ट करती है साइड AB को और साइड AC को, at which point? At point D and at point E respectively, such that AD upon DB is equal to AE upon AC, means this upon this is equal to this upon this, means ये DE लाइन है वो AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो प्रूव क्या करना है? तो प्रूव ये करना है कि जो DE लाइन है ये BC के पैरेलल है। वी हैव टू प्रूव that this line DE is parallel to BC। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये प्रूव हमें करना था। और देखिए ये इसमें जो प्रूव करना है, DE is parallel to BC, it was given in basic proportionality theorem and have we proved this AD upon DB is equal to AE upon EC। लेकिन कन्वर्स में इसमें प्रूव ये करना है DE is equal to BC while given AD upon DB is equal to AE upon EC। हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। What kind of construction is this? अज्यूम हमें प्रूव करना है कि ये DE BC के पैरेलल है। ये जो DE है वो BC के पैरेलल है। पर मान लीजिए पैरेलल नहीं है तो हमें एक पॉइंट E डैश AC पे ऐसा अज्यूम किया है कि DE डैश इज पैरेलल टू BC। कोई ना कोई लाइन तो पैरेलल होगी, बट दिस D पॉइंट इज द सेम पॉइंट। वी अज्यूम दैट DE डैश इज पैरेलल टू BC। अब प्रूफ देखिए क्या है। अब BE डैश है वो BC के पैरेलल है और जैसे ही कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल हो जाती है वी कैन अप्लाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देयरफॉर AD अपॉन DB, देखिए AD अपॉन DB इज इक्वल टू, क्योंकि लाइन DE डैश पैरेलल है, दैट इज व्हाई AE डैश अपॉन EC डैश। DE पैरेलल हमें प्रूव करना है। हमने सपोज किया कि ये DE डैश है, दिस पॉइंट इज E डैश, ये DE डैश पैरेलल है BC के। अगर ये DE डैश पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहता है व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड intersecting the two sides in the same ratio, that is why AD upon DB, AD upon DB is equal to AE dash upon E dash C। लेकिन देखिए what is given, AD upon DB is equal to AE upon EC। देखिए यहाँ पे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, ये भी AD DB ये और ये भी AD DB। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखिए बाय बीपीटी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट AE अपॉन AC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है AD DB, ये भी AD DB, तो इनका राइट हैंड साइड भी सेम होगा AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश। दोनों को कंबाइन, अब दोनों में वन ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड भी और राइट हैंड साइड। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, AE अपॉन AC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड ऐड वन, इधर भी वन ऐड करो और इधर भी ऐड करो। अब यहाँ पे EC एलसीएम लीजिए और राइट हैंड साइड पे E डैश C एलसीएम लीजिए। हमें क्या मिलेगा, AE अपॉन EC अपॉन EC और राइट हैंड साइड क्या मिलेगा, AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश। ये हमें मिला। अब फिगर की तरफ देखो, AE प्लस EC, ये रहा AE, देखिए AE और ये EC किसके इक्वल हुआ, AC के इक्वल।
तो एंड ये ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, देखिए ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ये भी ए सी के इक्वल, और ए ई प्लस ए सी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए सी। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, ए ई प्लस ए सी, इट विल गिव अस ए सी। when we add a dash plus e dash c, फिगर में देखिए, it will also give us ac। denominator here is ac and here it is e dash c। आप देखेंगे ac ac दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इट मीन्स ec इज इक्वल टू ई डैश सी। तो हम लिख सकते हैं ec इज इक्वल टू ई डैश सी। अब ec और ई डैश सी देखिए यहां पे, ये देखिए ec और ई डैश सी दोनों इक्वल, सी से ई का डिस्टेंस और सी से ई डैश का डिस्टेंस सेम है। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये ई डैश और ई एक ही पॉइंट हो, इफ द टू पॉइंट्स कंसाइड ईच अदर। सो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पॉइंट ई एंड ई डैश कंसाइड। इट मींस ई को ई डैश कह सकते हो, ई डैश को ई कह सकते हो। हमने कंस्ट्रक्शन लिया था बी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, इस ई डैश की जगह आप ई लिख दीजिएगा। क्या लिख देंगे, बी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, एक कंस्ट्रक्शन था। इन प्लेस ऑफ ई डैश यू कैन राइट ई, बिकॉज ई एंड ई डैश कंसाइड, कंसाइड का मतलब है दोनों एक ही पॉइंट हैं। सो डी ई इज पैरेलल टू बी सी। क्या यही प्रूव करना है? एंड वी हैड प्रूव दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी, वी हैव प्रूव्ड इट। दैट्स ऑल। दैट्स ऑल फॉर दिस थ्योरम। थैंक्स। थैंक्स। मैं बी एल शर्मा, मैथ्स।